Good afternoon, everybody. I'm Riddhi, your host for today's live from All About Skin Wellbeing team. I'm sure all of you must be keeping in good health. Today, we are going to discuss about skin healthy with focus on urticaria or hives, which we or our near or dear ones would have encountered at some point of time in their lives. Urticaria is characterized by round rash on the skin that itchy intensely. It may due to chemicals in the certain foods, allergy to certain medications, insect stings, sunlight, and sometimes the cause is unknown. As per the study published in Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one point of time. 60% of patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidence is higher in the older age group. Urticaria is classified as acute or chronic, but the most important part is not to ignore it, and doing self-medication can worsen its symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early remission. In today's digital world, it's a boon or a blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its type, how we can prevent it, the kind of test required for its diagnosis, the right treatment and management approach for an early relief. So, ladies and gentlemen, boys and girls, we have with us renowned dermatologist of India, Dr. Bansi Hirapra, is a dermatologist specializing in the field of dermatology, cosmetology, dermatosurgery, hair transplant, and laser treatment. Dr. Bansi has completed her MBBS from Swimmer and post-graduation from Surat SVBCH College. She takes immense pride in treating her patients with care by tapping into her expertise, deep knowledge, and best-in-class technologies. She is passionate about making a positive contribution to her patients' life by caring for and curing their ailments and helping them live a healthy and a beautiful life. Her aim is to uplift people by boosting their confidence and enhancing their youthfulness. A very warm welcome to Dr. Bansi Hirapra. It's a pleasure, Dr. Bansi, to have you with us today. And we are going to discuss about on a very important topic, that is management of urticaria. First of all, I would like to ask you, Doctor, what is urticaria? First of all, thank you so much for a kind introduction. And now coming up to your question, and let me tell you first that whatever you mentioned, all the facts that each and every patient should know. And then what is urticaria? तो बेसिकली अर्टिकेरिया जो है हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइव इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड काफी लोग उसे जानते हैं जैसे थापड़ टीटी और गुजराती में सीलर्स ऐसे काफी सारे रीजनल उसके नेम्स हैं तो डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट इज अर्टिकेरिया जैसे हमें कभी भी ऑल ऑफ सडन या तो क्रॉनिक काफी टाइम से काफी लोगों को होता है या तो किसी को ऑल ऑफ सडन एक्यूट अर्टिकेरिया हो जाता है जैसे कि स्किन पे छोटे छोटे रेडिश स्पॉट आ जाना उस पर काफी ज्यादा इचिंग होना एंड वो कोई कोई बारी ऐसा भी होता है कि वो कभी कभी 2 to 3 आवर्स में चले भी जाते हैं एंड समटाइम्स दे स्टे फॉर अ लॉन्गर मे बी वीक्स और अ मंथ. Thank you, Doctor. Doctor, what are the main causes of urticaria? There are so many causes. Let's start with a very basic one. जैसे कि अर्टिकेरिया के टाइप्स काफी सारे हैं. इट्स नॉट जस्ट अ बेसिक अर्टिकेरिया. मेजरली अगर हम उसे देखने जाए तो देर आर सम कॉजेज विच लीड्स टू एन एक्यूट अर्टिकेरिया यानी कि एक्यूट इन टर्म्स ऑफ वो जल्दी से होता है और जल्दी से चला भी जाता है एंड अनदर वन इज क्रॉनिक अर्टिकेरिया जैसे कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो रहा है और वो जाने में भी टाइम ले रहा है दैट्स व्हाई इट इज अंडर क्रॉनिक अर्टिकेरिया. तो बेसिक कॉजेज आर जैसे किसी ने खट्टा खा लिया मोस्ट आई एम टेलिंग यू मोस्ट कॉमन कॉजेज अदरवाइज देर आर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कॉजेटिव फैक्टर तो ये 500 to 600 इन नंबर्स है. तो विल कवर द वेरी मोस्ट कॉमन जिससे काफी कॉमनली लोगों को अर्टिकेरिया हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज जैसे किसी ने कुछ खट्टा खा लिया उससे काफी लोगों को हो रहा है. खट्टा खाने से या तो फिर आटे वाला फर्मेंटेशन वाला कुछ खाना खा लिया और अदरवाइज प्रिजर्वेटिव वाला फूड ले रहे हैं. तो बेसिकली आइदर यू ईट यू ड्रिंक
और द फ्रिक्शन, कुछ चीज हमने कुछ ऐसा कर लिया उसकी वजह से हो रहा है। जैसे कि कुछ कुछ सारे लोगों को होता है ठंडे पानी से नहाने से हो रहा है, किसी को गर्म पानी से नहाने से हो रहा है, तो इट्स कॉल्ड कॉलिनर्जिक अर्टिकेरिया। अगर सन की वजह से हो रहा है तो दैट इज एन सोलर अर्टिकेरिया। किसी किसी को ऑक्यूपेशन की वजह से होता है, जैसे कि कोई है जिनका प्रोफेशन है वाइब्रेशन, कंटिन्यूअस वाइब्रेशन में उनको काम करना है, तो दैट डिपेंड्स ऑन उनको वाइब्रेटरी अर्टिकेरिया भी हो जाता है, पर्टिकुलरली उनको हाथ वगैरह में हो जाता है। अदर देन दैट जैसे कि जिम वगैरह ज्यादा करते हैं और जिम ट्रेनर और फिजिकल फिटनेस पर्सन, उनको प्रेशर अर्टिकेरिया भी होता है, जो वेट लिफ्टिंग ज्यादा करते हैं। और समहाउ काफी ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी होता है, क्योंकि उनका काम वही है। एंड अदर देन दैट किसी को एलर्जिक चीज की वजह से हो रहा है, जैसे कि पोलन डस्ट है, फिर सिलिका डस्ट है, या तो ग्रास वगैरह है, कहीं पे भी वेदर चेंज हुआ और अर्टिकेरिया हो जाता है, वो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। राइट नाउ वी आर फेसिंग द वेदर चेंजिंग फ्रॉम ऑल ऑफ सडन, ह्यूमिडिटी इज इंक्रीजिंग, तो उसमें भी काफी लोगों को दिस इज द सीजन व्हेन वी गेट लॉट्स ऑफ केसेस ऑफ अर्टिकेरिया। तो वो दोज आर द ट्रिगरिंग फैक्टर्स, जिनको पास्ट में हुआ है उनको सीजनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। देन देर आर सम सेल्स जो स्किन के लेयर्स में रहते हैं, उसे बोलते हैं हम मास्ट सेल। तो मास्ट सेल का एक्टिवेशन हो जाता है एंड दैट विल लीड रिलीज सम हिस्टामिन, सेरोटोनिन, तो उसकी वजह से वो केमिकल्स वगैरह जब भी रिलीज होते हैं स्किन में, तो हमें एक जगह पे इचिंग आना चालू हुई एंड दैट विल कॉज टू अनदर लीजन, तो वो ग्रेजुअली सब जगह पे बढ़ता जाता है। फिर किसी किसी को उसे हम बोलते हैं डर्मोग्राफिज्म, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन से ऐसे लाइन बनाया, तो आई कैन राइट माई नेम ऑन ऑन माई स्किन, तो वो मेरा नाम उभर के आ जाएगा, दैट विल लीड टू सम स्वेलिंग, तो उसे हम बोलते हैं डर्मोग्राफिज्म। दैट इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट अर्टिकेरिया, टाइप्स ऑफ अर्टिकेरिया। तो देर आर लॉट्स ऑफ कॉजेज, तो इसे हमें वो फाइंड करना है कि हमें कौन से कॉज की वजह से हो रहा है, और वो आप नोट डाउन कीजिए एंड उसी से आपको एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, तो डेफिनेटली दे कैन फिगर आउट कि आपको कौन सा अर्टिकेरिया हो रहा है एंड ट्रीटमेंट वुड बी डिपेंड ऑन दैट। ओके, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आपने जस्ट मेंशन किया द टाइप्स ऑफ अर्टिकेरिया, जैसे कि ठंडा पानी या गर्म पानी या सनलाइट के वजह से, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्टिकेरिया है, तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल, हाउ कैन अ पेशेंट आइडेंटिफाई कि उन्हें अर्टिकेरिया हुआ है? हाउ डज इट लुक लाइक एंड इज इट एन एलर्जी काइंड ऑफ? Yes, so there are classical symptoms of urticaria. जैसे कि if you are suffering from acute urticaria, तो आपको स्टार्टिंग में कहीं पे जैसे कि मॉस्किटो बाइट हो रहा है, राइट, तो मॉस्किटो बाइट करता है तब हमें उतने पर्टिकुलर पार्ट में, उतने स्किन के एरिया में हमें रेडनेस आ जाता है एंड इन ड्यूरेशन, यानी कि उतना पार्ट उठ जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। So all those are the symptoms of that mosquito bite. So the similar symptoms we are facing in urticaria, but there is a multiple thing. And even the mosquito bite is one of the cause कि उसकी वजह से भी हमें अर्टिकेरिया होता है। So that can be anywhere on your skin. जैसे कभी हाथ पे चालू हुआ तो वो ही सेम जगह पे आपको दूसरी बार होगा, that is not fixed, आपको बॉडी के कोई भी पार्ट में हो सकता है। एंड अनदर थिंग इज एंजियोएडिमा, यानी कि वो सॉफ्ट टिश्यू का अर्टिकेरिया है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सम एलर्जिक रिएक्शन, और समहाउ कभी कभी हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून कंडीशंस रहती है, जैसे कि शरीर में कहीं पे भी कुछ भी इंफेक्शन है तो उसकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द कॉज, और आपको उसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि किसी किसी लोगों को खट्टा खाने से हो रहा है, तो आपको अर्टिकेरिया हुआ, जैसे आई आई टुक अ डिनर और उसके बाद में मुझे 1 घंटे बाद अर्टिकेरिया होना चालू हुआ, तो मुझे बैक माइंड में जाके मुझे चेक करना है कि ओके मैंने क्या आज खाया था। इफ आई ईट बैंगन, तो फिर मुझे वो नोट डाउन करना है कि मुझे उसकी वजह से, इफ आई एट आचार, तो फिर वो मुझे नोट डाउन करना है कि उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ, जिनको क्रॉनिक अर्टिकेरिया हो रहा है उनको डेफिनेटली ये हैबिट बनानी चाहिए, जब कभी भी आपको अर्टिकेरिया हो रहा है तब आप
रिवर्स साइकिल में जाके एक बार चेक कीजिए कि आज का आपका रूटीन क्या था, एंड मेक अ हैबिट ऑफ नोट इट डाउन एंड टेल योर डम इट कि मुझे पॉसिबिलिटीज लग रही है, मैंने इतना कुछ डिफरेंट किया था अदर देन माई रूटीन लाइफ। सो वी कैन फिगर आउट कि आपको कौन सी चीज मोस्ट प्रोन है जिसकी वजह से आपको अर्टिकेरिया हो रहा है, एंड उसे हम रिवर्स कर देंगे तो डेफिनेटली वी कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट इजीली। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि हैविंग एनी ऑफ द फूड उससे कुछ एलर्जी या ऐसा कुछ हो जाता है, क्या और डज अर्टिकेरिया हैज इमीडिएट रिएक्शन और इट हैपेंस आफ्टर लाइक अ डे और टू आफ्टर हैविंग एनी ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स? Yeah, definitely. It has the immediate reaction also. But if you are asking particularly about food, then food will always give you immediate reaction. But in very few cases, you might get reaction on next morning. Okay. Okay. Otherwise, within 1-2 hours, whatever the digestion time, so it has to take 2 to 3 hours. तो उतने टाइम में वो रिएक्शन आना चालू हो जाता है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एक्यूट वन, ताकि हमें इमीडिएट उसमें पता चल जाता है और उसे हम उस अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं. दैट मीन्स जो इमिडिएट रिएक्शन देता है दैट्स एन अक्यूट वन, और जो क्रॉनिक देने वाला होता है वो धीरे 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 करके काफी बढ़ने लगता है. सो दैट टर्म्स इनटू लाइक क्रॉनिक अर्टिकेरिया, राइट? या, ओके. डॉक्टर, इज अर्टिकेरिया अ सीरियस डिजीज? Definitely no. If it is on a starting day, so that is a very common condition. You can take it little bit on lighter side, but not that much lighter side that you can consume home care remedies, or you can take OTC medication और आप डॉक्टर को दिखाने ना जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. अदरवाइज वेरी बेसिक अर्टिकेरिया कैन कन्वर्ट इनटू द क्रॉनिक वन. और एक बार अगर वो क्रॉनिक अर्टिकेरिया हो रहा है तो दैट विल टेक टाइम, मे बी इन मंथ, इन वीक और अ ईयर टू. तो इफ इट इज बेस्ड ऑन एलर्जिक रिएक्शन कि वो इंटरनली अगर उन्होंने मास्ट सेल को स्टिम्युलेट कर दिया बहुत ज्यादा, तो फिर वो उसे ठीक करना लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हो जाएगी. एंड या इन दैट माइट बी फैटल अल्सो, बट वो कब होगा जब आपको एंजियोएडिमा टाइप का अर्टिकेरिया हो रहा है, यानी कि आपके बॉडी में कुछ डिजीजेस भी है, कुछ और रोग है, और उसकी वजह से अगर हमें अर्टिकेरिया हो रहा है तो वो एंजियोएडिमा कहलाएगा. एंजियोएडिमा यानी उसके सिम्टम्स कैसे रहते हैं, जैसे कि स्किन नहीं लेकिन सॉफ्ट टिश्यू है वहां पे स्वेलिंग आना, अराउंड आईज, अराउंड लिप और द प्राइवेट एरिया, वहां पे काफी सारा एडिमा हो जाता है, काफी आई स्वलन हो जाती है. तो उसे हमें डेफिनेटली लाइटली नहीं लेना चाहिए. इमीडिएट आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसके ट्रीटमेंट लीजिए. ओके, थैंक यू डॉक्टर. डॉक्टर, ऐसा है कि व्हेन यू गो आउटसाइड वी डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ ऑयल इज बीइंग यूज्ड डिफरेंटली अपार्ट फ्रॉम द होममेड फूड. डज ऑयल प्ले अ मेजर रोल हैविंग अर्टिकेरिया? Not specific the oil only, but part of it, yes. But there are lots of different, as I earlier mentioned, there are lots of food which can lead to urticaria. तो उसमें ऑयल भी उसी का पार्ट है, बट वी कांट से सेपरेटली कि अच्छा फॉर एग्जांपल आपने आज लंच लिया और लंच के बाद में आपको अर्टिकेरिया हुआ, तो देर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट कि हम उससे आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें ये पर्टिकुलरली ये ऑयल हमने यूज किया था उसी की वजह से हुआ. You know, we might get allergic, or we might get stimulated by any of the triggering factors. जो भी मैंने मेंशन किया उसमें से कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. बट या देयर माइट बी वन पॉसिबिलिटी कि ऑयल चेंज हुआ तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम किया उसने, तो दैट मे लीड टू अर्टिकेरिया. So that is one of the possibilities. Okay. Doctor, is there any possibility that if any individual in their entire lifetime have never inked, that is उन्होंने कभी tattoo नहीं करवाया है, and due to ink is been done in the skin, does it possibility have urticaria on the same day, or like it does have a later reaction? Yes, definitely. That's why we always recommending that you should go for a tattooing, then you should go
फॉर अ प्रॉपर टैटू आर्टिस्ट फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप जब भी प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट के पास जा रहे हो तब आस्क देम टू गिव यू पैच टेस्ट। कि इंक में काफी सारे ऐसे आयरन ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, काफी ऐसे कंपोनेंट है, हैवी मेटल से उसमें जो स्किन के पर्टिकुलरली लेयर के बीनीथ जाने वाले हैं और वो वहीं पे स्टे करने वाले हैं। तो पैच टेस्ट इज वेरी मच मैंडेटरी। उसका बेनिफिट ये होगा, अगर आपका पैच टेस्ट हुआ है तो इफ देयर इज रिएक्शन विल गोना हैपन, तो वो आपको इमीडिएट उसमें कुछ रिएक्शन देगा, बट दैट इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो शायद अर्लियर स्टेज में भी आए, डिपेंड्स ऑन योर सेंसिटिविटी। वो पर्टिकुलर मेटल से आपको कितना सेंसिटिव, वो पर्टिकुलर इंक से आपको कितना सेंसिटाइज होने वाले हो, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो दैट माइट बी कम ऑन अर्लियर स्टेज ऑल्सो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने करवाया 30 मिनट तक वेट किया और आपको रिएक्शन नहीं आया एंड यू आर गोइंग फॉर टैटू। तो एटलीस्ट आइडियली यू शुड वेट फॉर 24 आवर्स। अगर मैक्सिमम रिएक्शन आना है तो उतने टाइम में आ जाएगा, and then you can go for that particular tattoo artist and have a wonderful tattoo. Yeah, thank you so much, Doctor. What are chronic urticaria hives and how will they go away? Okay, so basically chronic urticaria, as we earlier mentioned, there are different allergic components. Chronic urticaria particularly होता है, food is a very less prone thing, बट जो पेशेंट्स है जो जिनको पर्टिकुलर फूड से एलर्जी है एंड दे आर कंटिन्यूअसली कंज्यूमिंग दैट थिंग, तो फिर वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक अर्टिकेरिया इज सम इंटरनल डिजीज, यानी कि ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून यानी कि हमारी ही बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे ही बॉडी के फाइटर सेल्स के सामने लड़ रही है। ऐसे काफी सारे स्किन कंडीशन हो सकते हैं। देन अनदर थिंग इज rheumatic conditions, जैसे कि किसी किसी को जॉइंट पेन वगैरह है और उनका इंटरनली ऑटोइम्यून कंडीशन है तो भी हो सकता है। देन अनदर थिंग इज एच पाइलोरी इन्फेक्शन, यानी कि काफी सारे लोगों को गट्स की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया रहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनको भी ये हो सकता है। देन अनदर थिंग इज एसिडिटी। फिर किसी किसी को डेंटल इश्यूज रहता है जो इंटरनली इन्फेक्शन है लेकिन हमें वो ध्यान में नहीं आया, या तो हम उसे इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट कॉजिंग अ मेजर पेन और मेजर डिफिकल्टीज इन अवर डे टू डे लाइफ। तो वो डेंटल कैरीज वगैरह भी काफी बार कॉजेटिव फैक्टर है क्रॉनिक अर्टिकेरिया के। तो वी नीड टू फिगर इट आउट कि कौन सी चीज की वजह से हो रहा है और अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू ट्रीट इट। फॉर एग्जाम्पल एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो देर आर सम मेडिसिन जो हम उनको एंटीबायोटिक वगैरह दे देंगे तो उसकी वजह से भी हो रहा है। एंड अनदर थिंग इज क्रॉनिक अर्टिकेरिया काफी सारे पेशेंट्स में ड्रग इंड्यूस भी होता है, जैसे कि कोई पेशेंट्स है पर्टिकुलरली जिनको फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल का एलर्जी है तो उनको भी ये हो सकता है। देन समहाउ किसी किसी को एंटीबायोटिक, कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक की एलर्जी रहती है उसकी वजह से भी रहता है। देन पेन किलर, तो दोज आर द ड्रग्स जिनमें कॉमनली एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। डॉक्टर, आर देयर एनी पॉसिबिलिटीज कि अर्टिकेरिया ट्रीटमेंट लेने के बाद कंप्लीटली डिसअपियर हो सकते हैं? Yes, definitely. So that is a treatable and curable both. But the thing is, patient should be patient. उनको ना डेफिनेटली अर्टिकेरिया के पेशेंट्स में ये रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर दैट, लेट मी कम टू दैट। So there are some primary basic medications that you can take on emergency basis, जैसे कि OTC प्रोडक्ट्स आपको मैं कुछ बता रही हूँ जैसे वो आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव लिवोसाइट्रिजिन और फेक्सोफेनाडिन और साइट्रिजिन। तो ये जो सारी मेडिसिन है वो आप डायरेक्टली ड्रग स्टोर पे जाके वो आप बाय कर सकते हो एंड हैव इट, और ताकि आपको वो टेम्पररी रिलीफ मिल जाए। देन कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। इफ यू आर इन सिचुएशन कि आप कहीं पे नहीं जा सकते हो डर्मेट के पास में,
तो आप डॉक्टर पास नहीं जा सकते हो, तो ये आप उतना मेडिसिन है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आप ले सकते हो, तो यू कैन कंज्यूम दैट। सेकेंडरी थिंग रहता है कि जिसमें हमें काफी सारे इम्यूनोसप्रेसिव भी देने पड़ते हैं, और द अनदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज स्टीरॉइड ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है, पेशेंट्स का ये रहता है जब भी हम उनको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन उनको हम दे रहे हैं, तब उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स आर गिविंग मी स्टीरॉइड। तो काफी सारे पेशेंट उसे छोड़ देते हैं, राइट। बट द थिंग इज, दिस इज अ वेरी बेसिक ट्रीटमेंट। Steroid will not always harm you if it is given in a proper dosage and under observation. तो डोंट पैनिक विद द स्टेरॉइड मेडिकेशन। चाहे मुझे खुद को भी अर्टिकेरिया हो रहा है, तो आई नीड टू टेक दैट मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू माय पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अगर मुझे बेसिक सा अर्टिकेरिया है, तो डेफिनेटली मैं कुछ मेरी लाइफस्टाइल में इम्प्रूव कर लूंगी, या तो फिर मैं कुछ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को मैं रिवर्स कर दूं, तो that is curable even with the basic medication. I should not consume steroids. So the same thing with the patient, any human body, राइट। बट अगर जिनको क्रॉनिक थिंग है और उनको सिवियरिटी है कि बहुत ज्यादा अर्टिकेरिया हो रहा है, हम रूटीन लाइफ उनकी डे टू डे लाइफ हैम्पर हो रही है, दे हैव कंटिन्यूअस इचिंग, तो दे कांट डू देयर वर्क प्रॉपरली, तो डेफिनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम उनको इमीडिएट रिलीफ ना दे, राइट। और इमीडिएट रिलीफ, देयर आर सम मेडिकेशन जिनमें स्टेरॉइड भी है, तो वो लेना पड़ेगा, एंड दैट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। स्टेरॉइड की साइड इफेक्ट है, लेकिन वो अगर हम ऑब्जर्व्ड कंडीशन में दे रहे हैं विद द वेरी मिनिमम डोज, तो उसकी पॉजिटिव इफेक्ट हम ले रहे हैं उसमें से। एक सर्टेन डोज के हम ऊपर जाएंगे तब उसकी हमें साइड इफेक्ट होने वाली है, तब तो वैसे भी हम उनका मेडिसिन स्विच कर रहे हैं। So don't panic and don't bother steroid that much. Steroid is a very wonderful medicine. अगर बंदा मर रहा होता है, तो the first medication is to survive them, to make them alive. That is a steroid. तब हम मना नहीं करते ना. So the thing is, it depends on dosage, and we are treating urticaria in that manner only. So chronic urticaria is curable and treatable too. But the thing is कि patients को patience चाहिए उसमें, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें मेडिकेशन बंद करते हैं। देन फूड भी ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम गेटिंग एलर्जिक टू पीनट, तो वो मुझे लाइफ टाइम पीनट्स बंद नहीं रखने हैं। जब तक मेरी बॉडी में वो पर्टिकुलर मास सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, तब तक मुझे उसे नहीं खाना है। फिर मेरी मेडिकेशन के साथ में वो मैं प्रॉपरली उसे खा पाऊंगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू डॉक्टर, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी दी है फॉर स्पेसिफिकली अबाउट स्टीरॉइड्स, क्योंकि जब क्रॉनिक हो जाता है पेशेंट्स टेंड टू गेट पैनिक एंड दे अवॉइड टेकिंग स्टीरॉइड्स, कि उसके साइड इफेक्ट्स उनके बॉडी को काफी ज्यादा हार्म करेंगे। बट योर इन्फॉर्मेशन हैज हेल्प टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग इट राइट नाउ। डॉक्टर, व्हाट आर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ urticaria if they are left untreated? Okay, so there is no major complications per se, but the thing is, very minute complications are like there are few conditions जो aggravate हो सकती है, और vice versa there are few conditions कि जिससे ये urticaria भी aggravate होगा, जैसे कि very basic कंडीशन है, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीज है या ऐसा कुछ है, तो वो अर्टिकेरिया को भी एग्रावेट करेगा। एंड देर आर फ्यू कंडीशन कि जिससे अर्टिकेरिया एग्रावेट होगा। तो एज सच कॉम्प्लिकेशंस में हम ये बोल सकते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ हैम्पर हो रही है, इचिंग सिवियरिटी में भी बढ़ सकता है, अर्टिकेरिया की वजह से समहाउ ड्राइनेस वगैरह का भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो देर आर वेरी बेसिक थिंग कि जो हम उसे बोल सकते हैं कि एज अ कॉम्प्लिकेशन फॉर्म में पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज देर आर नो मेजर कॉम्प्लिकेशन। राइट, थैंक यू डॉक्टर। हमारे पास कुछ व्यूअर्स है जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, एंड वी हैव मिली अग्रवाल हुज क्वेश्चन इज, आर देयर एनी सपोर्ट ग्रुप्स और रिसोर्सेज available for parents for of children with urticaria? Yeah, sorry, can you hear me properly? Yes, we can, please go.
Yeah, so there is no major complications. There are very minute which hampers our day-to-day life, and the thing is, whoever are suffering from urticaria, they had lots of issues in their day-to-day life because it is very stubborn thing. And काफी सारे लोगों को particularly if they are working so they can't handle the situation because it is very itchy and we can't resist to eat even in public places and that shows on our any body part, right? So it might be appear on my face, and if I'm facing you live right now, so that definitely will lower down my confidence. So those are the things, but that's why we should. It is a very high alert condition कि जब भी हमें अर्टिकेरिया हो रहा है तो हमें उससे लाइटली नहीं लेना चाहिए. काफी सारे लोग यही मानते हैं कि अच्छा ये तो सिर्फ अर्टिकेरिया ही है, ये तो पित्ती हुआ है, एक दिन में वो वैसे भी सही हो जाएगा. यस, अर्टिकेरिया इटसेल्फ सेल्फ लिमिटिंग थिंग, बट फॉर अ वेरी शॉर्टर ड्यूरेशन. अगर आपके सेल्फ सेंसिटाइज हो चुके हैं तो डेफिनेटली वो आगे जाके आपको रिपीटेडली होने वाला है. So you should be very cautious and very alarming. Urticaria is alarming condition कि आपको कहीं पे भी बॉडी में कुछ तकलीफ नहीं है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए. Thank you, doctor. Doctor, we have Kirti Kapoor, whose question is on what part of the body did do the urticaria start? Any part of body, कहीं से भी हो सकता है. somehow आपको अगर एक बार अर्टिकेरिया हो रहा है तो समझो कि ये यहाँ से हुआ है, तो सेकेंड टाइम आपको यहाँ पे भी हो सकता है. एनी पार्ट ऑफ बॉडी, देर इज नो स्पेसिफिक पार्ट कि जहाँ से अर्टिकेरिया हो. एनीवेयर ऑन स्कैल्प आल्सो, ऑन योर आईज, nose, lip, anywhere. Doctor, we have Advik Singh, whose question is, do any food such as shellfish other than seafood or nuts ever trigger hives? Yes, definitely. More prone food which triggers a hive, that is definitely a seafood and some fishes. Then and that is a very individual thing, not for everyone, and individual it is individual in that deep that आपको एक बार आपने ये पर्टिकुलर फिश खाया या तो फॉर एग्जांपल आपने शेल फिश खाया तो वो डेफिनेटली सेकेंड टाइम आपको वही पर्टिकुलर फूड से अर्टिकेरिया हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी. So yes, the seafoods and whatever you mentioned, all those are triggering factors whoever having urticaria. Thank you, doctor. Doctor, what takeaway message would you like to give to all our viewers diagnosed with urticaria and not diagnosed with urticaria, and what prevention should they take? So let me brief you. First of all, आपको जब भी urticaria हो रहा है, don't take it that much lightly. If your doctor is not available at particular time or you are in condition that you can't go to doctor to meet doctor, then consume some medications like levocetirizine, cetirizine or fexofenadine. Consume that from the medical store particularly, and then start having properly note down of observation. Start having observing the things किसकी वजह से आपको हो रहा है, and consult your dermatologist as soon as possible. क्योंकि तभी जाके वो आपका क्रॉनिसिटी कम होने वाला है, and you can prevent yourself getting urticaria. And another thing is कि diagnosis is very much important and very much mandatory. जैसे कि there are few blood test also, जो कॉमन से ब्लड टेस्ट रहते हैं वो हम करवाते हैं, जैसे कि CBC. उसमें हम देखते हैं कि ये सब काउंट ज्यादा है कि नहीं है. If it is more, so that might be a chronic also. एंड एक्यूट इओसिनोफिल काउंट भी हम चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपके बॉडी में एनर्जिक कंपोनेंट कितना ज्यादा है. इफ इट इज ऑन अ हायर साइड तो उस अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन प्लान करते हैं. एंड द अनदर थिंग इज देर आर फ्यू एलर्जिक टेस्ट कि जिससे आपको पता चलता है. देर आर फ्यू ब्लड टेस्ट कि जिससे हमें एलर्जी टेस्ट पता चलता है कि ये फूड की वजह से या तो ये मेडिकेशन की वजह से आपको एलर्जी हो सकती है. इट्स नॉट लाइक दैट कि इससे ही आपको हो रहा है, बट या प्रोबेबिलिटी उसमें आपको बता सकते हैं. देन अनदर थिंग इज इफ देयर इज अ कॉन्टैक्ट एलर्जी तो पैच टेस्ट रहता है कि जिससे हमें पता चल जाए इसकी वजह से ये पर्टिकुलर चीज आपको
छू रही है, उसकी वजह से आपको अर्टिकेरिया हो रहा है. So diagnose yourself earliest. And the treatment part. So definitely let your dermatologist decide your treatment and help them with your detailed history. आप जितना भी डिटेल्ड हिस्ट्री दोगे उनको, उतना ही उनके लिए बेस्ट रहेगा, एंड यू विल गेट रिड ऑफ अर्टिकेरिया वेरी सून. Thank you so much, Doctor, for giving the valuable information in a very short and a briefly to all our viewers. Thank you so much, Dr. Bansi Rapra, for your valuable time. It has been a very informative sessions for all the viewers, and I'm sure they will use this information to prevent themselves and their near and dear ones from getting urticaria. And in case if they get to see such symptoms, they know what initiated instead, and self-medication, it's better to approach a nearby dermatologist. It's great to hear from you. We are really looking forward for many more such sessions in the coming times for all our viewers. Thank you, viewers, for your active participation in today's sessions. And to get latest updates on how to keep your skin healthy, do like and follow our FB page, All About Skin Wellbeing. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you so much, and have a great day ahead. Thank you.